السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNI میں آپ کا میزبان افصالی بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں مرید الحسن، یہ خانہ بدوشوں کا ایک قبیلہ ہے جن کا ایک نوجوان کو ناحق قتل کیا ہے۔ اسلم نامی لڑکا تھا جس کو وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ ہمارے ساتھ یہ پورے خانہ بداشت لوگ موجود ہیں جو انصاف کے لیے کوہ نور TV پہنچے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے اور آپ عوام ہماری آواز بنے۔ یہاں پر اس کی والدہ بھی موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ تھانہ سیول لائن راولپنڈی کی حدود میں یہ واقعہ پیش ہے۔ اماں جی، آپ کا بیٹا کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا، ہم کو پانی کی کمی تھی، ہم جھگیوں میں رہتے تھے اور پانی بھرنے کے لیے 2 پھیرے لگا لیے اور تیسرے پھیرے میں گا تو مغرب کی اذان کے بعد لائن پر پٹڑی کے اوپر وہ لڑکا چڑھا محلے کا، تو آگے سے ہو کے نہ میرے بیٹے کو سائیکل موٹر اس کا روک لیا۔ تو بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی میرے نام اسلم ہے۔ تو نہیں، تجھے ببلی بھی کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا تو ہاں مجھے لاڈ کا نام ببلی بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بس، اس نے نکالا پسٹل، اس کو ایک سینے میں گولی لگا دی، 2 پٹوں پر لگا دی، پھر گولی کے سمیت بھاگ کے ہماری جھگیوں کی طرف آیا۔ آگے پھر بھائی کھڑا تھا، بھائی نے اس کو جفے میں ڈالا اور ڈال کے نا وہ ہاسپٹل راجہ بازار لے گئی۔ اس کو نیچے وہ مجھوں والا مجر تھا، وہ دیکھ رہا تھا، نہ لڑائی تھی نہ گال تھی نہ کوئی کسی سے جھگڑا تھا، تو اس کو 2 پیر اوپر کرے 3 اس کو مار دی۔ تو ان کے جانے کے اوپر وہ بھاگ گیا، 5 پیر اس کو مارے گئی۔ بے گناہ اور بے تکا ہے میرا لڑکا جیل میں چلے۔ اماں جی، کتنے بچے کتنے تھے اسلم کے؟ بیٹے 4 بچیاں 1 بیٹا۔ تو بڑی والی بیٹی آنکھوں سے نبینی ہے، چھوٹی 1 بچی سال کی گود میں ہے، یہ اور 2 بچیاں چھوٹی، یہ سارے اس کے بچے ہیں؟ یہ 5 بیٹیاں بیٹے اس کے ہیں۔ اب ہمارے میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم ان کو سام لیں گے۔ میرے بچوں کی فیملی زیادہ وہ آپ کے بچوں کو سامیں گے کہ میری دعائی کریں گے کہ کوئی بھی سامنے والا نہیں ہے ان کو۔ میرا بچہ بیکیا تھا، وہ چلاتا تھا، اس کے میں کام کرتا تھا تو تھوڑی سی دعائی مجھے لیا کے دیتا تھا اور بچے کی روٹی بناتا تھا۔ تو اتنا کام کیا کرتا تھا وہ؟ یہ بیکیا چلاتا تھا، ہاں۔ اور اس دن میں گیا بھی نہیں تھا، باپ کا اس کے ختم تھا۔ کتنے دن پہلے باپ فوت ہوا؟ 9 دن اور 10ویں کی رات وہ اس کو گولیاں لگ گیا۔ تو اب جو اس کے بچے ہیں ان کی کفالت کون کرے گا، ان کو پالے گا کون؟ اب میرے سر پر ہے، میں بیمار ہے، دل کی مریض ہے، شوگر کی مریض ہے، بلڈ پریشر کی مریض ہے، اور انہوں نے کچھ اور بیماری بھی بتائی، وہ بچوں کو میں بتا نہیں سکتی، بچے گھبرا جائیں گے۔ تو اتنا ہمارا ماحول ہے، ہمارے سے مشکل سے سامنے جائے گا ہم کو اس کا۔ پولیس جو کر رہی ہے آپ اس سے مطمئن ہے؟ پولیس نے بتایا ابھی تک کہ ملزم پکڑا ہے، اس سے کیا تفتیش کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ملزم پکڑ لیا، اور انہوں نے بتایا نہیں کہ بھائی کس نے مرایا گیا، خود نے مارا، خود کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں تھی، جھگڑا نہیں تھا، تو کسی کے کہنے۔ آپ کو شک ہے کہ آپ کے بچے کو کسی کے کہنے پہ قتل کیا گیا؟ یہ ہم کو شک بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ وہ کیسے ہے کہ وہ لڑکا ہی بھاگ کے آیا، اس کو 5 پھیر کر دیے، تو اسی کی بات ہے ان کے ساتھ۔ وہ پولیس والے اس کو پوچھو، اس کی تفتیش کرو، اس کو مار کٹائی کرو تو وہ بتائے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کا بچے کو گولیاں لگی کتنے دن وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا؟ ہسپتال میں کتنے دن رہا؟ 20 دن پہلے ٹھیک ہو گیا تھا، تو اس کی امی آئی تھی، پتہ نہیں وہ ڈاکٹروں کے ساتھ ملی، تو وہ ادھر سامنے بھگا دی تھی۔ کیا دینے اسپتال بھی پہنچ گئے تھے؟ دھمکیاں دے رہے تھے اسپتال میں جا کے؟ ہاں، اور اب لڑکا نے طریق دیکھ کے گانا پھر بھی دھمکیاں دے رہا تھا۔
मैं कितने साल में उधर रहूंगा, फिर आके तुम्हारे बंदे मारूंगा। अच्छा, उस लड़के ने कहा। धमकी अभी भी दे रहा है? धमकियां अभी भी दे रहा था। उसका बाप भी आ रहा था, उसकी अम्मी भी आ रही थी, खाला भी आ रही थी, फुप्पी भी आ रही थी, मामू भी आ रहा था, उसका खालू भी आ रहा था, चाचा भी आ रहा था। इतने बंदे उसके पीछे आए थे। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप आगे आए, आप उसकी वाइफ हैं। आप मुझे बताएं कि आपके खामन ने आपको कभी बताया था कि उसकी किसी से दुश्मनी है? नहीं, कभी भी नहीं बताया था मुझे। अगर कोई झगड़ा लड़ाई होती तो वो लाजमी बताता। उस दिन कभी भी कुछ भी नहीं बताया कि बाहर से किसी से लड़ाई हुई है, किसी से भी नहीं झगड़ा हुआ था। तो कैसा था वो? लड़ाई करने वाला था, शरीफ था, कैसा था? बिल्कुल भी किसी से बाहर, हम लोग झुग्गियों में रहते हैं, हम किसी से बाहर लड़ाई नहीं कर सकते हैं। तो कितने अरसे से आप लोग इधर झुग्गियों में रह रहे हैं? काफी अरसे से हम इधर रह रहे हैं। तो क्या असलम काम क्या करता था? ये बैकिया चलाता है। कितने बच्चे कितने हैं आप? 5 है जी। तो अब बच्चों की कफालत कैसे होगी, किस तरह होगी? ये तो बस अभी नहीं सोचा है, पता नहीं कैसे होगी कैसे नहीं। तो जब आपका खामन जख्मी हाल आया है, जैसे उसकी वालदा ने बताया उसको गोलियां लगी हुई थी, तो भाई के पास आके गिरा, तो उसे बताया नहीं है कि मुझे क्यों गोलियां मारी गई हैं, मुझे साथ क्या हुआ है? बता रहा था, वो कह रहा था पानी लेके आ रहा था, आगे से मोटरसाइकिल पकड़ के नाम पूछ के गोलियां उसने मारी हैं। नाम पूछा और फिर गोली मारी है उसने, टारगेट करके मारा है इसको? जी ऐसे ही मारा। फिर वो भाग के आ रहा था पीछे से, फिर उसको मारी हैं गोलियां 4। 5 लगी हैं उसको गोलियां। बच्चे कितने हैं आप? 5 है बच्चे, 4 बेटियां 1 बेटा है मेरा। छोटे छोटे हैं मेरे बच्चे, यतीम कर दिए हैं, बेकसूरा मेरा मियाँ। बच्ची एक आपकी नबीना भी है? जी हाँ, एक बच्ची नबीना। तरफ आता हूँ, बेटा आप इधर आए। आप बताएं, आप नबीना है, आपके वालिद का जब आपको पता आया मुझे क्या बताया कि मेरे अब्बू को कत्ल कर दिया है। जी सीएम साहबा, ये वो बच्ची है नबीना जिसके वालिद को नाहक कत्ल किया गया, और वो पता ही नहीं कि क्यों मारा गया। वो पानी लेने गया और वापस जब आया जख्मी हालत में। बच्ची, आपको वालिद की याद आती है? जी। तो आप चीजें खर्चा वगैरह आप कौन कर रहा है? कौन खर्चा आप कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? मेरा अब्बू। अबू अब फोत हो गया, आप कौन खर्चा चला रहा है? कोई भी नहीं। तो आप नबीना है, आप कैसे आपकी जिंदगी गुजर रही है? वालिद की याद आती है? जी। आप क्या चाहती हैं? आप इस टाइम आपको दुनिया देख रही है, आप क्या चाहती हैं? उसको गोली मारना चाहते। मुझे इंसाफ चाहता है अब्बू का। अबू का इंसाफ चाहिए? जी। आप ये बताइए, आपकी सबसे बड़ी बेटी है? जी ये बचपन से नबीना है? जी नहीं, पैदा नहीं हुई थी, उसके बाद हुई। जी। आपके भी वालिद साहब थे वो? आप आगे हैं, बताओ बेटा, क्या आपने के वालिद का जब आपको पता लगा? तो मैं रो रही थी, मुझे याद भी आ रहा था। अब्बू पहले गया था, मुझे ऐसे कह रहा था मैं दुकान से तुम्हारे लिए रोटी खाने के लिए ला रहा हूँ, तो आप खा लेना। जब आ रहे थे तो गोली सुनी थी, तो गोली की आवाज सुनी है? जी तो जब अबू जख्मी हालत में आए हैं, हॉस्पिटल दाखिल रहे हैं, तो अबू से बातचीत होती रही आपकी? जी। तो अबू ने बताया नहीं है, कोई बात नहीं की? नहीं, अब्बू कह रहे थे मैं ठीक हो जाऊंगा, तो फिर मैं तुम्हारा क्या कह रहा था? तसल्ली दे रहा था बच्चों को, मैं ठीक हो जाऊंगा, और उसको मरना भी पता था कि मैं मर जाऊंगा। भाई को कहने लगा था, वह बोले भाई मैं मर जाऊंगा, उस लड़के का बदला मेरी जान का लेना, जब मुझे सब्र आएगा। मैं बेगुनाह होके जा रहा हूँ, बेगुनाह मर रहा मैं। उनकी फरियाद थी कि मुझे नाहक कत्ल किया गया, बेगुनाह मारा गया। बेगुनाह मारा का मुझे, उसने ये बताई भी हमको बात, मेरा कोई कसूर नहीं था, ना मैं उसको कुछ कहा था। मेरा साइकिल मोटर रोक के मुझे गोली मार दी। पहले ऊपर पैर कर रहा था, फिर मेरी तरफ गिर गया, मुझे मार दिया। 5 पैर उसने करे, उसको एक सीने पर लगा दी, एक पेट पर गई, एक पट पर गई। अच्छा, ये बताएं कि आप उसकी वाइफ हैं, तो जब जख्मी हालत में हॉस्पिटल पड़ा था, उसने आपसे कोई दिल की बात तो की? नहीं, बस वैसे मैं, वो बच्ची मेरे साथ होती थी, वो कहते थे कि भी बस इनको ले जाओ भी,
अल्लाह ने मुझे भी मरते मरते बचा दिया। भी मैं बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं रह सका, बेकसूरा। ये बताएं कि वो लोग अभी भी आपको जो धमकियां दे रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो आपको पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है? पुलिस ने उनको रोका? अभी तक नहीं रोका जो धमकियां दे रहे हैं? नहीं रोका। ये कर रहे हैं कि भाई हमने गिरफ्तार कर लिया, एक बंदा जज के पास ले गए हैं। अब जज का देखो क्या माना निकलता है क्या नहीं। आप बताएं, जब उसने आपको बताया कि मुझे मारा गया, नाक मारा गया, तो बच्चे जब साथ उसने कोई वसीयत आखिरी की? नहीं, उसे कहा नहीं कि मेरा खून माफ करना या नहीं करना? क्या नहीं करना, हाँ भाई भी नहीं करना। मेरे बच्चे छोटे छोटे यतीम कर दिए, मुझे विधवा कर दिया, कल किसी और को भी वो कर सकता है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। को गोली मारो, गोली फांसी दो या गोली मारो। पुलिस को कानून भी निकला कि भाई ऐसे कातलियों को गोली मार दो। तो हमें तो इंसाफ चाहिए। किससे इंसाफ की ओ जेड़ी मरियम नवाज सुना है हमने कि आजकल के पुलिस चली हुई है कि कातिलों को भी मार रही है। हमारी भी यही गुजारिश है उनसे कि हमें इसका भी इंसाफ ही चाहिए। उसको बेकसूरा बेदोषा मारा, उसको भी ऐसे ही लगनी चाहिए गोलियां, जैसे उसको मारा ऐसे इसको भी मारना चाहिए। बेटा आप क्या कहती हैं? आप किससे इंसाफ है? मैं भी ऐसे मरियम नवाज मरियम नवाज से इंसाफ लेती हैं? जी सीएम साहब भाई, ये बच्ची जो है वो माजूर है, नाबीना है, और ये आपसे इंसाफ की तवक्को रखती है, ये देख नहीं सकती, लेकिन इसको पता है कि सीएम जब अच्छा काम कर रही है और हमें इंसाफ देगी। पुलिस जो है वो कर रही है वर्क, लेकिन इनको ये भी मुतमईन नहीं है, इनको धमकियाँ मिल रही हैं। और दूसरी तरफ जो वो लोग हैं वो बासर लोग हैं, ये गरीब झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, ये कह रहे हैं हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमें इंसाफ दे, हम अपने बच्चे का नाक उसको माफ़ नहीं करेंगे। आप चाहें बीबी, आपका क्या लगता है? मेरा देवर था, छोटे छोटे 5 बच्चे थे, उसको इसको बेवा कर दिया है, हमें तबाह कर दिया। हमें समझ ही नहीं लगती हम क्या करें क्या नहीं। मरियम नवाज वजीर आला, हमें इंसाफ चाहिए, हमारा बहुत बुरा हाल हो गया। हमें समझ ही नहीं लगती। हमारे छोटे छोटे हमारे भी बच्चे हैं, मेरे खुद के 5 बच्चे हैं। मेरा मियाँ मजदूरी करता 800-700 रुपए कमाता है, वो इनके बच्चों की रोटी पूरी करे, आप नहीं करें। अब इसका कोई कमाने वाला नहीं? कोई भी नहीं है, बच्चा छोटा सा है, बिल्कुल ना कुछ खराब, ये छोटा सा इसका बच्चा है, असलम का बेटा। कमा सकते। वालिद की याद आती है आपको? जी तो इन बहन बच्चों का क्या करोगे? कैसे इनका पाल लोगे वालिद के बगैर? नहीं, तो क्या चाहते हो आप? इंसाफ किससे इंसाफ चाहिए? मरियम नवाज से। अच्छा आप बताएं जी। आप हमें मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए। बेकसूरा मार दिया, कोई लड़ाई भी नहीं थी, झगड़ा भी नहीं था। पानी भर के आ रहा था तो नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या? उसको 2 नामों से बुलाते थे। उसने कहा मेरा नाम असलम है, वो कहता नहीं बबली है। तो पिस्टल निकाली, उसको फैर सीधा सीने पे मारा, वो भागा है, खून के समेत भागा। तो पीछे से फिर 4 फैर मार दिए। भाई की गोद में आके गिर गया है तो उसने उठाया, फिर भाग गया। फिर हमें 5 दिन आके इधर हमारे आगे पीछे वो हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से लड़ रहा था, और वो आके धमकियां, वही लड़का जिसे कत्ल, वही लड़कियां हंसता था, आगे हमारे बच्चों को भी डराता था। उसने जमानत पूरी करवा ली थी, तो कहता था अभी तो एक मारा है, अभी तुम्हारे जो रह गए हैं उनको भी मारेंगे। हमारे मियाँ को भी डराता था, मेरे दूसरे देवरों को भी। बहुत हमारा बुरा हाल है। उसकी वालदा आई है हॉस्पिटल में, वो कहती है कि तुम ना राजीनामा लिख दो, नहीं लिखोगे तो तुम्हारे दूसरे बच्चों को मारा जाएगा। कि मेरा बेटा ना तुमको ही मार देगा। अभी गिरफ्तार हुआ है ना, तो 2 पिस्टल उसके पास बरामद हुए। हमारी जान को भी बहुत जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद असलम के जो अहले खाना है इनसे मजीद पूछेंगे ये क्या चाहते हैं और इंसाफ इनको मिल पाएगा कि नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि हम इस टाइम थाना सिविल लाइन की हदूद मरीड और रसन में वाक़या खाना बदोशों का ये एक कबीला है जो गुज़िश्ता 40 साल से यहाँ पर आबाद है, जो
यहाँ पर खुले आसमान के नीचे 40 साल से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन हक एक असलम नामी इनका जो नौजवान था उसको कत्ल किया गया, जिसके 5 बच्चे, 1 बच्ची नाबीना है और छोटे छोटे बच्चे हैं। ये उसकी बेवा, उसकी वालदा, उसका पूरा कबीला हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि CCD जो है वो बनाई गई है, CCD इसकी तरफ भी तवज्जो दे और ऐसे मुल्ज़मान को काफ़ी किरदार तक पहुँचाया जाए जो नाहक किसी को कत्ल करते हैं, फिर उनके जो दीगर गैंग के लोग हैं उनको जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। जो नामालूम लोग हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मैन मुल्ज़म जो गिरफ्तारी से पहले आकर धमकियाँ देता है, उसके अहले खाना की तरफ से जान का खतरा है। कौन धमकियाँ देता है आप? हमको उसकी वालदा देती है, उसका वालिद साहब देते हैं, कहते हैं राजीनामा करो। हमारा हॉस्पिटल में थाना देवर जब भी आए थे वो कहते हैं अभी अब ना भी राजीनामा लिख दो, नहीं तो तुम्हारे से क्या होगा, तुम गरीब लोग हो, तुम्हारे दूसरों को भी मार देंगे। हमने बोला कोई दुश्मनदारी हमें बताओ, हमारे से तो रोटी भी नहीं खाया जाती, हमें पता लगा के दिया जाए। मरियम नवाज वजीर आला, आपने नई पुलिस चलाई है CCD, हमने नाम सुना है, आपका भी बहुत सुना है, हमें इंसाफ दीजिए। हमारे बच्चों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हम रोज रात को सारी रात जागते हैं, उनके बंदे आते हैं, सुकून नहीं आता। हम खुले आसमान के नीचे, हमें कोई और आके मार देगा तो धमकियाँ दे रहे हैं वो आपको? देते हैं धमकियाँ के राजीनामा लिखा जाए। उनके बंदे यहाँ पे रात को आते हैं? हाँ, रात को आते हैं, इधर उधर फायरिंग करते हैं? हाँ, हवाई फायर करते हैं, तो इधर उधर घूमते हैं। हमें समझ नहीं लगती हम क्या करें, किधर जाए, छोटे छोटे बच्चे लेके। हम बहुत इधर अनसेफ है, हम नहीं है इधर सेफ हमारी जिंदगी। हमारे बच्चों का कुछ कीजिए, ये यतीम बच्चे हैं, इनको सफाई इंसाफ दीजिए। मरियम नवाज जो नई पुलिस चलाई है आपने, उस तरह ही उसको भी गोलियां मारी जाए। आप क्या कहती हैं? आपका क्या लगता था? असलम आगे आ जाए, आप इधर आए। आपका क्या लगता था? हमारा भाई लगता सका भाई था आपका? जी, तो आपसे बड़ा था छोटा था? बड़े से छोटा ना, छोटा था। सब भाइयों को और बहनों को संभालता ना। तो जब उसको कत्ल किया गया, जब उसको जख्मी किया गया, तो जब वाकया उससे पहला लफ्ज क्या कहा? उसने ये बोला था कि भाई मुझे संभालना, मुझे गोलियां लग गई है, गोद में आके बड़े भाई के गिरा था। फिर आप उसको अस्पताल ले गए? जी, फिर हॉस्पिटल ले गए। तो पुलिस ने मदद की है आपकी? मुझे पुलिस आ रही थी, अभी भी पुलिस मुतमैन है, हमारी मदद भी कर रहे, लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा कि किस वजह से हमारा बेकसूर हमारा भाई मर गया। तो आपको क्या, किससे उम्मीद है इंसाफ की? हमको मरियम नवाज से हमने सुना था, हम देखते थे, लेकिन आज हमारे साथ भी ऐसा हो गया। हमारा भाई का इंसाफ चाहिए, बेकसूर, उसको नहीं था पता, कोई मुझे गोलियां लगेगी, मुझे कुछ कहेंगे। मेरे भाइयों को, बहनों को वही संभालता था, मेरी अम्मी की तरफ भी वही ख्याल करता था। तो बहन भाइयों के साथ अच्छा था, आपके साथ अच्छे तरीके से बोलता था? बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था, हम चले जाएंगे लेकिन उसको नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। हमें इंसाफ चाहिए मरियम नवाज से, हमें इंसाफ। आप आए जी, आपका क्या लगता था? वो मेरा भांजा था, बहन का लड़का। तो कैसे वाकया? ये ऐसे ही वाकया हुआ, 2 फेरे उसने पानी के लगा लिए, तो 1 फेरा आखिरी रह गया था। तो बस वो नीचे से, ये मजर का एक भाना है, उधर से वो पिस्तौल लेके आया, पूछा तेरे नाम क्या? नाम लेके पूछा? नाम क्या है? तो भी मेरे नाम है असलम। तो नहीं, और भी है तुम्हारे नाम? तो नहीं, मुझको पुकारते असलम। फिर वो कहते हैं भी बबली भी है। तो फिर बस सामने से 2 फेर मारे, 2 नीचे मारे। फिर वो भाग के आया, तो वो खूनो खून सारा। कितने दूर से भागे? वो कोई 10-15 कदम, तो वो हाँ गिर गया। तो वो उसको भाई को इसने आवाज मारा, तो उसको फैर मारे, आप लोगों को फैरों की आवाज आई? हाँ, हम सभी भाग के गया, अल्लाह का खैर करी, है क्या मसला। तो आगे हमने देखा, तो आगे हमारा भांजा, तो वो बेचारा भांजा कह रहा था, तो भाई वो लड़का मुझको मार के गया, तो भाई मेरे भाई तो बदला ले लेना, मैं मर जाऊं तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं बच्चे मेरे बहुत याद आएंगे, तो मैं मर जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे, कोई संभालने वाला नहीं है। तो मरियम नवाज मैं ये कहती हूँ,
आप हुकूमत बहुत अच्छी चलाते हो, बहुत प्यारी हुकूमत चला रहे हो, तो हमको इंसाफ चाहिए। आप बहुत, हम देखते हैं खबरें, तो बहुत बहुत काम अच्छे कर रही हो, तो ये भी काम अच्छा इंसाफ से हमको दे दो, तो बड़ी मेहरबानी है आपको, हम दुआ करेंगे। और ये मेरी बहन बहुत गरीब है, बहुत ये बीमार रहती है, तो इनका गुजारा नहीं होगा, कि बच्चे नहीं पाया जाएगा, तो बेसहारे बच्चे बन गए हैं। अब या तुम्हारा आसरा या अल्लाह का है, आप इंसाफ बस। जी सीएम साहबा से ये सब कबीला इंसाफ मांग रहे हैं, आप आगे आए जी, आप बताएं आपका क्या लगता था? मेरा वो भाई था, हमको तो इंसाफ भाई था? ये अम्मी हमारी दिल की मरीज है, सबको हमको संभालता था, उसके बगैर हम बेकार है। जैसे वो बेकसूरा मारा गया ना, उसको भी सजा चाहिए हमको। ये जो बच्ची उसकी माजूर है, अंधी है, बाकी बच्चे हैं, तो इसकी कैसे कफालत होगी, कौन पालेगा? पता ही नहीं लग रहा हमको, हम यही सोच सोच के मर रहे हैं रात दिन। हम गरीब लोगों पर रहते हैं, हमको कोई आसरा नहीं है, सहारा नहीं। उसका सहारा था तो वो भी अल्लाह ने छीन लिया हमारे से। जालम पता नहीं किधर से आया था, किधर से नहीं, हमको नहीं पता है। दुश्मनी नहीं थी आपकी पहले? नहीं थी, कुछ भी नहीं था, हमको तो इंसाफ चाहिए। भाई का पहले कभी किसी से झगड़ा हुआ था, लड़ाई करता था? नहीं करता, शरीफ था? शरीफ सी था हमारा भाई, सादा से। हम झुग्गियों में रहने वाले क्या किसी से झगड़ सकते हैं? पानी लेके आ रहे थे, बस उसको गोली मार दिया, उसकी कोई समझ ही नहीं लग रही। हमको तो उसका कातिल चाहिए। हम जैसे हमारा भाई बेकसूरा मारा गया, वो भी ऐसे ही मारा गए। हमको ये चाहिए, इंसाफ दिला देना हमको मरियम नवाज से। आप आगे हैं जी, आपका क्या लगता था? मेरा भाई लगता था भाई, उसने नाम बताया था, हाँ नाम बता के तो फिर भाई को बोला कि भाई जान भी उसको, वो भाग गया हमारे से, भाग के फिर वो चला गया अस्पताल में। वो जहक से मरा, शायद ऐसे मरता ना मरता भाई जान, उसकी जहक से मरा था। उसको हर टाइम दस्त रहती थी, उसको पकड़ा भी नहीं था पुलिस वाले ने। 20 दिन के बाद उसी लड़के को? हाँ उसी लड़के को। ये कह रहे हैं वो आगे आपको धमकियां भी लगाता रहा इस दौरान? हाँ उन 20 दिनों में ना तो पीछे आके हमको धमकियां देता था। क्या कहता था? वो कहता था कि एक रिक्की क्या मारा हमने, बाद में ये सबको मारेंगे, आस्ता आस्ता सबके भाइयों को भी मारेंगे, भांजों को भी मारेंगे, ऐसे वो हमको कहता था। तो क्या आप किससे इंसाफ के अपील करते हैं? हम ये कहते हैं कि जैसे हमारे भाई को मारा ना, उसको बिल्कुल ऐसे ही उसको भी खत्म कर दो, हमको इंसाफ मिल जाएगा। बस जैसे हमारे भाई को मार दिया, उसको भी ऐसे ही मार दो। अभी उसके बच्चों की कफालत कौन करेगा, इनको कौन पालेगा? इनके बच्चे को बस अल्लाह, ये पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं। मेरा भाई बहुत मुश्किल में, परेशानी में रहते हैं। आपका वो क्या लगता था? मैं उसकी भतीजी थी, मेरा वो चाचू था। मेरा कत्ल हुआ आप कहाँ पे थे? लड़ला था, घर पे थे हम। गोलियों की आवाज आपने सुनी है? बहुत जोर से आवाजें थी, हमने सुना। वो जख्मी था? जी जख्मी था। ये जो उसके बच्चे हैं, ये उस टाइम कहाँ पे? घर पे थे घर पे थे? जी। तो भी आप लोग क्या चाहते हैं? आपको धमकियां भी मिल रही है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द, जैसे हम लोग तड़प रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए मेरे चाचू के, वो भी ऐसे, उनके अब्बू तड़पे, बहन भाई खानदान पूरा तड़पे। हम यही अपील करते हैं मरियम नवाज से जल्द उसको फांसी हो, सजाए मौत दी जाए। हम यही चाहते हैं कि उसको नहीं छोड़ा जाए। बेकसूरा मारा गया मेरा चाचू, उसका कोई कसूर होता है हमें दुख नहीं लगता, बेकसूरा वो मारा गया। ये मेरे छोटे छोटे बहन। आप आगे आए जी, आप उसकी वाइफ हैं, इधर आए आप बताएं। जैसे इन्होंने साहब ने कहा, अगर आपकी क्या मुतालबा, आपका क्या? हमारा तो यही है कि हमें मरियम नवाज इंसाफ चाहिए। ये उसके बच्चे हैं असलम के, ये उसकी पूरी फैमिली है। ये उसकी जो बच्ची है, ये आंखों से मजबूर है, नबीना है, और ये भी इंसाफ की तवक्को रख रही है सीएम पंजाब से, और ये कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अम्मा जी, आप पे कोई प्रेशर है? किसी ने आपको अभी तक कहा है कि आप उसको माफ करें? धमकियां मिल रही हैं? नहीं, मुझे किसी ने भी नहीं कहा। ये अभी धमकियां आपको कौन दे रहे? धमकियां दे रहे। कौन दे रहा है? कचहरी में हम गए थे ना, उधर वो खुद ही लड़का कह रहा था, भाई तुमको जे कहूँगा, जे करूँगा, वो करूँगा। हम धमकी से खौफ में आ गए थे, और हमारे ऊपर किसी का हाथ भी नहीं है।
आपकी सिफारिश नहीं? गरीबी देख के, गरीब है हम, झुग्गियों में रहने वाले हैं, एक टाइम का कमाना और 3 टाइम का खाना वो हमारे से पूरा नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं होता। मुकदमा कैसे लड़ेंगे, केस कैसे लड़ेंगे? बस ये गरीबी है हमारे पास, ये हम जब तो ये कर रहे हैं, हमारे केस नहीं लड़ा जाएगा तो उसको ऑर्डर फांसी का दो। मेरा बच्चा बेगुनाह था, वो बोलता बोलता हॉस्पिटल में कह के गया कि इसको नहीं छोड़ना है। मेरी जान का दुश्मन ये था, इनकी जान का दुश्मन तुम बनना। इसको अंदर करा के सजाए मौत कराना। आपके बेटे ने कहा सुलह नहीं करनी, मेरा बदला लेना, बिल्कुल नहीं, मेरा खून माफ नहीं करना, उसने यही बोला हमको। जी हमारे साथ उसके दीगर अहले खाना और अजीज मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं, आपके क्या लगते थे असलम? मेरा मामू लगता है, सके मामू से रहता, हाँ सक्का मामू है। अच्छा, वो कैसा था, लड़ाई करने वाला था, शरीफ था? नहीं नहीं, बहुत अच्छा था, हमसे बहुत अच्छा, हमें अपनी बच्चियों की तरह समझता था, हमारा बहुत वो साथ देता था, हमारे साथ ऐसे रहता जैसे हमारी बहन नहीं रहती थी, हमारे बिल्कुल इधर पास रहता था वो। तो जब उसको मारा है, फायर हुए हैं, आप इधर आपने सुनी आवाज? हाँ, इधर हम घर थे, हम सारे भाग के गए थे यहाँ से। हाँ आगे वो जख्मी पड़ा हुआ? हाँ, बहुत जख्मी था मेरे मामू की गोद में। अच्छा, तो क्या समझते हैं इसके बच्चों को कौन पालेगा, क्या होगा? बस हम तो यही सोचते हैं, ये मेरे मामू की बच्चियां बच्चन का पता नहीं कौन सहारा बनेगा कौन नहीं। वैसे हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। किससे इंसाफ की अपील करती हैं? मरियम नमाज से। आप समझती हैं कि सीएम पंजाब इंसाफ देंगे? हाँ देगा, उसे फांसी देना। हमारा मामू बहुत अच्छा था, हमारा बहुत ख्याल रखता था। कितने बच्चे, कितने हैं आपके? 5 उसके। 5 बच्चे थे। हाँ। तो ये भी सुनने में आया कि अभी आपको और धमकियां मिली हैं, उनके लोग आके धमकियां दे रहे हैं। हाँ देते हैं, कहते हैं कि हमसे वो इसका नाम क्या है, वो करें। हाँ आप बेटा आप इधर रहें, आप बताएं आपका क्या लगता है? मेरा मामू लगता था असलम बेटा। जी, मेरा मामू लगता था। और उसको गोलियां लगी हैं, आप लोग कहाँ थे? हम घर ही थे और बेगुनाह से मारा गया रात के अंधेरे में। वो जब गोलियों से पहली गोली लगी थी, वो भाग के आ रहा था पीछे से बेदर्दी से, और उसने गोलियां मार दी थी। तो वो लड़का कहते हैं कि पहले भी यहाँ पे आता था, आप लोगों को धमकियां देता रहा। वो लड़का अब भी धमकियां देता है, अब भी आता है, रात को आता है। वो कहता है कि भाई उसके से हमारे से राजीनामा करो। जो उसके घर वाले हैं ना, उसके मामू हैं, वो कहते हैं कि भाई राजीनामा हमारे से करो, और हम चाहते हैं उसे फांसी हो। मरियम नमाज से सजा भी नहीं, उसे फांसी। बस जिस तरह से बेदर्दी से हमारे मामू को मारा गया। आपका क्या लगता था? चाचू। चाचू था। याद आता है चाचू? क्या चाहती हैं आप? इंसाफ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जो इस खाना बदोश कबीले के मर्द हैं, वो क्या कहते हैं, वो किसी के से इंसाफ चाहते हैं और किससे इंसाफ चाहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं थाना सेवलाइन के दूध मीर हसन के ऊपर। ये खाना बदोश कबीला है जो यहाँ पर 40 साल से आबाद है। इनके एक असलम नामनी नौजवान को नाहक कत्ल किया गया, जिसकी वजूहत अभी तक मालूम नहीं हुई। इनके अहले खाना, उसकी बूढ़ी माँ, ये उसके कबीले के जो मर्द हज़रात है, ये भी मौजूद है। खवातीन ने आगे जो इंसाफ की अपील की, ये क्या कहते हैं? असलम, आपका क्या लगता है? भाई लगता था। ये बताएं कि असलम की किसी से दुश्मनी थी पहले? नहीं, कभी भी नहीं थी, किसी से भी थी नहीं दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा ही नहीं करता था, बिल्कुल। हम खुद भी नहीं करते किसी के साथ। तो उसको क्यों मारा, क्यों, वजह क्या है? तो वो जब भाग के आया तो उसको किसने के पास आया, वो किसके आगे आके गिरा? ये बड़े भाई के पास आया था। जी हाँ। आप किधर थे? मैं घर था, मैं भी फिर भाग के आया था पीछे से, आवाज सुनी थी, मैंने भी फायरिंग की जी। तो घर में, तो फिर मैं भी भाग के गया, भाई भी आगे देखा, तो मैंने भाई के, बड़े भाई की गोद में था भाई, तो भी मुझे गोलियां मार के चला गया लड़का भी। वो जी हाँ, जेबी नाम का लड़का था, मेरी डसन का। तो हाँ, तो ना कभी लड़ाई थी ना कोई झगड़ा था, पानी लेके आ रहा था भाई, तो बस उसको बेकसूरा फायर मार दिए। उनको मजर था नीचे, वो गांव भैंसों वाला, तो उसने उनको देखा। हमारी गुजारिश है मरियम नवाज से, तो हमको इंसाफ चाहिए। आपकी खवातीन कह रही हैं कि धमकियां मिल रही हैं। जी हाँ, हमको धमकियां भी देते हैं। वो राजीनामे के लिए आते थे, उसकी वालदा भी आई थी हॉस्पिटल में, तो उसका अब्बू भी आया था इधर हमारे। कहता है ये तो पता नहीं कुछ हुआ है, आगो देखो तुम्हारे साथ क्या होता आगे, नहीं तो हाँ भी राजीनामा करो। तो आप अपने भाई का खून माफ कर देंगे?
नहीं, हम क्या करेंगे, बेकसूरी उसको मौत दी, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ाई थी ना, कोई झगड़ा था ना, कोई हमको भी समझ में अभी कोई लड़ाई झगड़ा होता कि भी इंसान को भी पता होता कि भी लड़ाई हुई थी, भी बेकसूरा मारा गया, उसको 5 फेर मारे उसको। 18 दिन जिनकी मौत की कश्मकश में था, आपसे कोई बात की? जी हाँ, बात की थी उसने यही बोला था कि मेरे से उसने नाम पूछा था, अभी लड़के ने आगे होके मोटरसाइकिल पे मैं पानी लेके आ रहा था, तो वो लड़का पैदल था? तो वो लड़का पैदल नीचे से भाग के आया था, उसका आगे होके ना मोटरसाइकिल का रास्ता रोक लिया, अभी तुम्हारा नाम क्या है? भाई ने बताया मेरा नाम असलम है, तो उसने बोला नहीं असलम नहीं है, तुम्हारा नाम बबली है। तो उसी टाइम उसने पिस्टल निकाला, सीधा उसको फैर मार दिया। तो 2 फैर उसको ना टांगों पे मारे, 3 फैर मारे, 2 फैर उसने हवाई छोड़े, 5 फैर मारे थे उसने। तो उसकी मौत किस वजह से वाक़ई हुई? कहाँ पे फैर लगा? ये जो सीने पे, सीने पे फैर? जी हाँ, सीने पे जो लगा था फैर, उसके से उसकी मौत हो गई थी। आप आगे हैं, आप क्या बताते हैं, आपका क्या लगता है? मेरा वो मामू लगता था, तो मेरा वो मामू लगता था, उसको बेकसूरा मारा गया। छोटे छोटे उसके बच्चे थे, वो किसी से भी नहीं लड़ता था, किसी से भी कुछ नहीं करता था, आपका मजदूरी करता था। 4 उसकी बच्चियाँ थी, 1 बच्चा था, वो आपके बच्चों का पेट भरता था। एक बच्ची उसकी है मेरे पास जो खड़ी है, माजूर भी है, नाबीना है, तो कैसे इसकी कफालत होगी? बाप के बगैर इसको कौन पाले? बस इसके बगैर अब कोई भी नहीं इसके सिर पे हाथ रखने वाला। अब तो कोई भी, उसका बाप था वो फोत हो गया, कत्ल हो गया। तो इसका हमारे से मरियम नवाज पे गुजारिश है कि इसका जो है इंसाफ मिले, उस कातल को जो फांसी से फांसी हो। हमारी यही गुजारिश है मरियम नवाज से। अच्छा ये बताएं कि जब वो कातल यहाँ पर उसको फैर मार के गया है, तो बाद में फिर वो धमकियाँ देता है? हाँ जी, कचहरी में हम उसने वो जमानता वो करा रहा था अबूरी, तो उधर भी आया, उसने धमकियाँ दी हैं कि हमारे सही फैर मारे हैं। अच्छा, हाँ, ये उसने हमारे धमकी दी है। पुलिस आपकी मदद कर रही है? पुलिस मदद कर रही है। तो क्या आप मजीद क्या चाहते हैं, क्या करे पुलिस? मजीद ये चाहती है कि उसको फांसी दे, और हमारा जो है ना मुतालबा ये है बस उसको फांसी मिले। जो दूसरे 3 नामालूम लोग हैं वो वो भी पुलिस से गुजारिश है कि वो मालूमात करें, उसका रिमांड लें। आपको इत्मीनान में लिया? अभी तक नहीं लिया, नहीं लिया। उसने रिमांड में हमें नहीं बुलाया, 1 दिन में। आप आमने सामने कत्ल की वजूहत वो बुलाएंगे, कह रहे हैं अभी रिमांड में हमको बुलाएंगे। आप बताएं, आप पुलिस से मुतमईन हैं? जी हाँ, मुतमईन है, पुलिस इंसाफ करेगी? इंसाफ करेगी जी। आप आगे आ जाएं जी। आपका क्या लगता था असलम? जी मेरा भाई था सगा भाई था जी। आपका? तो जब उसको मारा आपकी तरफ? घर ही था जब फायर की आवाज आई थी ना, तो भाई जा रहा था भाग के, तो मैं भी गया आगे कौन देखा, से भाई की गोद में? बड़े भाई की। वो किधर है? वो खड़े हैं। आप इधर आए। जब वो आपकी गोद में आके गिरा है तो आपको उसने आवाज मारी थी, कैसे पता लगा कि असलम को गोद में? मैं पटरी के लाइनों पे ही बैठा हुआ था, मेरा भाई पानी लेने के लिए गया है, 2 फेरे लगाए हैं उसने, और तीसरा फेरा फिर पानी का लगाने आया वो फिर मैंने ना गोलियों की, मैंने पटड़ी पे बैठा, वो मैंने शोले भी देखे हैं जो गोलियों के निकले हैं मेरे सामने ही। वो कोई 40-50 कदम था दूर, जिधर फैर के हमारी झुग्गियों के पास ही वो लड़का चल के आया मल्ले से। और सर जब उसको गोलियां लगी तो दस्ती मैं भागा, आज भी वो बोला जी मुझे मार दिया। मैं आवाज़ समझ गया हूँ, मेरे भाइयों जैसी आवाज़ है। मैं चप्पलें निकाल कर नंगे पाँव भागा हूँ उसकी तरफ। मैं 10-15 कदम गया तो वो लड़का ना हमारी तरफ भी ना ऐसे पिस्टल करके हवाई फैर आपको मारने की कोशिश, हवाई फैर मार के भाग गया वो। डराने की कोशिश? पिस्टल हमारी तरफ भी किया उन्होंने, उसने ऐसे पिस्टल किया मेरी तरफ। आपका भाई असलम आपकी गोद में आके गिरा है तो उसने पहला लफ्ज क्या कहा? उसने, मैंने पूछा दस्ती, तुम्हारा असलम क्या किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? उसने कहा आज भी नहीं है, मेरा लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं था, इस लड़के से किसी से नहीं है, और मुझे गोलियां ने इसने मार दी है, और बोले मैं बचूंगा नहीं आज भी। तो सीने पे ना दाएं साइड पे सीने पे गोली लगी है, और उसने लड़के मकाकंस ने मारे जी, वो फलाना लड़का, उसका नाम बताया उसने, जे भी है, वो अक्सर फिरता रहता था, हमें कुछ इधर जो हाँ तो मोहल्ले का था ना, फिरता रहता, हमें नहीं पता कुछ, हमें ये काम करेगा कि वो करेगा। हाँ जी, तो वो मेरी गोद में आगे गिर गया, और मैंने उसको 5 फैर लगे हुए थे जी,
एक उसके सीने पे लगा हुआ, 2 इधर पेट में लगे हुए थे, एक इधर टांग में नीचे और एक पाँव के नीचे। उसने बेदर्दी से मेरे भाई को मारा है। मेरे भाई ने बताया आज भी जब मैं आया तो मोटरसाइकिल पर ऊपर चढ़ा तो लाइनों के ऊपर मैंने थोड़ा सांस लीजिए, लड़का अचानक एकदम आया आगे से नाम पूछा, नाम पूछते ही ना उसने फिर उसने दाई साइड पे पिस्टल रख के उसने मारा फिर सीधा। एफआईआर तो आपकी 302 में 324 302 में कन्वर्ट हो गई है, तो पुलिस तावनकारी आपके साथ? सर पुलिस पहले 18 दिन ना जो जब हम हॉस्पिटल में थे तो इतनी कोई नहीं तहकीकात की थी, लेकिन जब हमने एहतजा किया तो लाश रोड पे हाँ लाश जब रोड पे हमने एहतजा किया तो रोड के ऊपर फिर सिविल लाइन का जो को हमला है सारा, FCB SHO भी और DSP आए थे, वो असगर गुराई साहब आए, फिर वो हमारे घर पे भी आए, हमारी रास दस्सी उसने यानी कि हमारी हाँ दाद रस्सी उन्होंने की है हमारी। मालूम बंदे हैं वो पकड़े गए हैं? हमारा यही मुतालबा है हमारे से। ना मालूम बंदे पकड़े गए हैं? नहीं पकड़े गए हैं। तो आपने नामजद किया किसी को? नामजद नहीं किया जी, क्योंकि ना हम जानते नहीं है, ना कोई दुश्मनी है, ना कोई। आपको अभी तक बताया नहीं है कैसे आपके भाई को किस वजह से मारा? जी अभी नहीं बताया, लेकिन जो को इंस्पेक्टर बाबर ज़हरुद्दीन है वो अच्छी तहकीकात कर रहा है, हमें ना मतमीन है उन लोगों से, और असगर गुराई साहब जो DFC हैं हम उनके ऊपर भी मतमीन है और वो हमारा साथ दे रहे हैं, इंशाल्लाह मजीद वो साथ देंगे हमें। आप आगे हैं तो क्या समझते हैं कि पुलिस आपसे मुकम्मल तावन कर रही है? पुलिस तावन कर रही है, पुलिस से उम्मीद है वो हमें बताएंगे कि भी किस वजह से मारा है, किसने मरवाया है। हम ये चाहते हैं कि किसने मरवाया। ये चाहते हैं कि कत्ल की वजह मालूम हो? जी हम ये चाहते हैं। जी हाँ यही हमारे है मुतालबा, हमें कत्ल की वजह पता चले कि भी क्यों हमारे भाई को कत्ल किया है। क्योंकि इस लड़के के साथ लड़ाई झगड़ा कोई नहीं था, पहले कोई दुश्मनी हमारा भी नहीं था, भाई के साथ भी नहीं था। और जो बच्चे हैं एक माजूर है, 4 बच्चे और एक बेवा, 5-6 बंदे करके इसकी कफालत कैसे आप लोग? बस अब इसके देखें इनकी भी 5 बच्ची हैं इसकी और 3 बेटे हैं, इसके 8 बच्चे हैं जी, और ये खुद मजदूरी करता है, ये अपने बच्चे पालेगा। मैं बड़ा भाई हूँ और मेरी भी 4 बेटियाँ हैं जी, और अब इसके भाई के छोटे के इसके जो को हो गए यतीम बच्चे, 5 यतीम बच्चे किए हैं। कल को ये लड़का बाहर रहता है किसी और के 5 बच्चे को और किसी को मारेगा, उसके बच्चे यतीम करेगा। तो आपको है उम्मीद कि पुलिस को छोड़ देगी? इंशाल्लाह हमें उम्मीद नहीं है, पुलिस उसको पूरा सजा देगी। हम मतमीन हैं जो असगर गुराई साहब है ना, हमारे से अच्छा तावन करे, हमारी दाद रस्सी हमारे घर भी आया, उन्होंने फौरी उसी दिन ही मुजरम को पकड़वा भी दिया है और मुजरम उनकी कस्टडी में है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे भी हमारे साथ ही पुलिस देगी। हमें उम्मीद है मरियम नवाज तक भी की भी गुजारिश, हम वज़ीर आला पंजाब से मरियम नवाज से हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ देंगे। इंशाल्लाह आप आगे भी अच्छे काम करें। आपने जो अब नई फौज चलाई है, आपने जो कानून पास किया, जे हम गरीब लोग और आम जो को बेकसूर है वो बहुत खुश हैं इसके, क्योंकि जुर्म पेशा न सारा को सजा दी जाए, और हमसे आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, जैसे आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं तो मजीद आपसे ना जो इनके बच्चों इंसाफ मजीद इनकी जो उसकी वालदा उसकी बेवा है उनसे पूछते हैं वो क्या कहती हैं जी। उनके जो अहले खाना है, दीगर जो उसके ख़ानदान कबीले के लोग हैं, खाना बदोश, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है? ये उसकी वालदा, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, ये उसकी नबीना बेटी ये मौजूद है, ये क्या चाहती हैं इनसे पूछते हैं। आप अम्मा जी क्या चाहती हैं? प्रोग्राम का टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। अम्मा जी चाहती है जैसे मेरा बेटा जान से गया ऐसे उसकी जान, फांसी उसको दी जा। आप क्या चाहती हैं? हम भी यही चाहते जैसे मेरे मियाँ को खामद को बेमौत बेदोसा मारा, ऐसे ही हमें भी इंसाफ चाहिए, उसको भी ऐसे ही गोली से या फांसी से भी ज्यादा कुछ सजा तो वो मिलनी चाहिए। हमारी ये गुजारिश है मरियम नवाज से। आप आगे हैं, आप क्या चाहती हैं? आपका क्या लगता है? मेरा लगता था भनु भाई ये बहन है मेरी। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ मरियम नवाज को ये कहना चाहती हूँ, जैसे और के केसों में जाती है इधर आके हमारी अपील ये सुना जाए उसको। हमारी ये गुजारिश है हाथ जोड़ के,
ये मेरी बहन है, ये बेवा होगी 5 बच्चों की, बेकसूरा हो गई है। हम कोई भी नहीं सुनता हमारी, सबके ये सुनती है। हमारी इधर आके अपील सुनी और उस बंदे को ना फांसी लगाया जाए। पीछे किसका हाथ है, किसने मरवाया है उसको, ये हमको मालूम करना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका कहना है कि नाहक कत्ल किया गया, इंसाफ दिया जाए। अपने मेज़बान इफ्तार अली भट्टी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।